ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو عالم رضا چاہتے ہیں تاکہ خدا رضا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام یہ وہ محفل پاک ہے جس محفل کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس مخلوق ملائکہ فرشتے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اس محفل پاک کو جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہو، اور جب وہ اس محفل کو پا لیتے ہیں فرشتے تو وہاں پر وہ شریک ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ، آج کی ہماری محفل پاک ہے کہ جس میں فرشتے حاضر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ اس شخص نے سب میں بہتر جو اپنی اولاد کو تربیت دی وہ سب میں بڑی دولت ہے دنیا میں. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں چھوڑی جس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی. ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں دنیا بھی ضروری ہے، لیکن دنیا کے متعلق یہ معاملہ ہے کہ جس طرح کشتی ایک سمندر پر چلتی ہے، اگر کشتی سمندر سے اتنی محبت کرے کہ وہ اپنے اندر جذب ہونے دے سمندر کو تو خود بھی ہلاک، اس میں بیٹھنے والے بھی ہلاک. اور اگر اس سے اتنی محبت کرے جتنا کہ اس سے اپنا مطلب حاصل ہوتا رہے تو خود بھی نجات اور اس میں بیٹھنے والے بھی نجات. اسی طریقے سے ہم دنیا کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں دنیا میں رہنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور منع فرمائے اس سے تم رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنی کہ اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند. تو رب تعالیٰ کے محبوب کہ رب تعالیٰ جو چاہتا ہے پھر اس اپنی مرضی کے مطابق محبوب سے فرماتا ہے میرے محبوب تم ایسا فرما دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان اپنے محبوب سے فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب تم ایسا فرما دو. قل، رب فرما رہا قل میرے محبوب تم فرما دو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو وہ رسول کہ جن کے دربار کی حاضری کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتائے اور چلنے کا طریقہ رب تعالیٰ بتائے. کلام پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم مت رکھو، آگے نہ چلو. وقت ایسا آیا کہ نیا اسلام ہے، ابتدائی تعلیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجرے سے پیچھے آواز دیتے ہیں. اب اس کا طریقہ بتایا کہ پیچھے سے
सामने आकर आवाज़ दो। तो रसूल का वो दरबार है कि जहाँ पर जिनकी नज़र ने दिन को देख लिया और उनके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समा गए, तो फिर उनका अनोखा मामला हो गया। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम। इरशाद फरमाया, मेरे तमाम सहाबा किराम सितारे के मालिक। तमाम दुनिया वालों से अपने सहाबा को अलग फरमा दिया और इतना बुलंद फरमा दिया, फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे जो तमाम सहाबियों सितारे के मानिंद है। जिस तरह से इंसान भटका हुआ रहता है और सितारा देखकर जब रास्ता भूल जाता है तो उसी सितारों के जरिए से इंसान अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसी तरह दुनिया में रहने वाला इंसान जो गुमराह होते हैं और फिर वो सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, तो उस मंजिल पर रास्ते में चलते चलते वो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। तो सहाबा किराम की वो ज़िंदगी मुबारक है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, तो उस दीदार की बरकत से पूरी दुनिया में वो अनोखा और निराला हो गए। उनकी आज रब ताला ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन वो वक्त था गरीबी का। ऐसे गरीबी वक्त में सहाबा किराम ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पर अमल कर कर और दुनिया वालों को क़यामत तक रहने वालों को दर्ज दिया कि दुनिया वालों, रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखो किस तरीके से वो ईमान में दाखिल हुए और किस तरह उन्होंने अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल कर कर अपनी ज़िंदगी को गुजारा। वक्त ऐसा आया, जिहाद जा रहे हैं, लेकिन एक कपड़ा जिस्म पर है, सिर्फ तलवार है। उनसे तलवार की इसलिए है अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी में तलवार हाथ में है, एक कपड़ा पहने हुए हैं और जंग के लिए जा रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा देखो उनकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी, ना औलाद की फिक्र थी। तभी तो रब ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि जो इंसान अपनी तमाम चीज़ों को अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर देता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है। ऐसा भी वक्त आया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ मेरी जान के अलावा आप तमाम चीज़ों से मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हैं। अपनी जान बुलंद करते हैं, मेरी जान ज़रूर मुझे ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्यारी है। तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। फिर जब बात ये सुनी कि आका का ये फरमान अभी तक मुकम्मल ईमान नहीं हुआ, तो अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अब मेरे नज़दीक आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। इरशाद फरमा अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। वो सहाबा किराम जिहाद में जा रहे हैं, भूख लगी, खाने के लिए कोई चीज़ ना थी। आज तो हमारे सामने किस्म किस्म के खाने मौजूद हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाए कि वो वक्त आ जाएगा कि जब एक खाना उठाया जाएगा दूसरा खाना रखा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 वर्ष पहले तमाम बातें बता दी और इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को ऐसे सजाओगे जैसा काबा शरीफ सजाया जाता है। आज वो वक्त हमारे सामने, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की गैब की नज़रों से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। आपने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो सब में आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। तो सहाबा किराम की वो ज़िंदगी मुबारक के जिहाद में जा रहे हैं, भूख लगी, खाना मौजूद नहीं, अब क्या किया जाए। लेकिन आज के अगर हम जैसे मुसलमान होते तो कहाँ जाते, खाना ही नहीं मिलता तो क्या हम अल्लाह की राह में लड़े। लेकिन सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखिए, वक्त आया, भूख लगी, दरख्त खड़े हैं, उनकी जो पत्ते हैं उनके पत्तों को खाकर अपनी भूख को ख़त्म किया और अल्लाह की राह में जिहाद करने निकल रहे हैं। ये वक्त था, एक साहबी बयान करते हैं कि जब हमको फरागत की हाजत होती, बैतुल खला में जाने की हाजत होती, तो हम इस तरह करते थे जैसा कि जानवर मेहनत किया करता है। क्यों, वो खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, पत्तों को सूट कर खाया करते थे और फिर इस्लाम फैला है। आज हमारे सामने तभी कहा है इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था वो हाले ना रहे। वो ही जानते हैं जिन्होंने अपने, आज हम दरख्त को पानी देते हैं, लेकिन सहाबा किराम ने शजर इस्लाम की जो आब पाशी की वो किसके जरिए की, पानी से नहीं की,
दौलत से नहीं की, किससे की? अपने खून को बहाया और जब सदर इस्लाम को परवान चढ़ाया। आज उन्हीं की बरकत है कि जो चारों तरफ इस्लाम फैला हुआ है। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सब में ज्यादा मेरी उम्मत होगी। सुभान अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत पर फख्र करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कितनी शान उनकी बुलंद है। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला ने मुझे एजाज दिया है, जब क़यामत होगी तो सब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशानी के आलम में। तमाम अंबिया किराम के पास में जाएंगे, लेकिन तमाम अंबिया किराम की तरफ से आवाज़ आएगी, निदा आएगी कि माना, हम इसके लायक नहीं हैं, जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। सब में आखिर में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे तो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाओ, वही सिफारिश करेंगे। सब आएंगे आपके दरबार में। फिर आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने रब के लिए सजदा करूँगा, और जब तक सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा, जब तक मेरा रब मेरी पूरी उम्मत की बख्शिश नहीं कर देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का एजाज देखो। हम गुनाह कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक में वरम आ जाया करता था। हम जैसे गद्दारों की खातिर आप तो मासूम हैं, आप तो रब के महबूब हैं। रब ने फरमाया कि मेरे महबूब कोई जरूरत नहीं जान इबादत करने की, आप परेशानी ना पड़ी। लेकिन वो अल्लाह के महबूब आपसे जब कहा गया या रसूल अल्लाह आप इतने करें परेशान क्यों हो रहे हैं, तो क्या क्या फरमाया आपने? क्या अना मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आपने फरमाया मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतनी इबादत किया करते थे, आपके पैर मुबारक के ऊपर और सूजन आ जाया करते थे, इतने अल्लाह ताला की इबादत करते थे। आप रब के महबूब, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा तो उम्मत को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। तो वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। ये उनका के जब तक दुनिया में रहे हमारी फिक्र थी, और क़यामत तक हमारे लिए नहीं दिलाएंगे जब तक हम इसी फिक्र में आप लगे रहेंगे। और आपको खुशी उस वक्त होगी कि जब हमको जन्नत में दाखिल करा देंगे। और आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब तक राजी नहीं होगा, जब तक अल्लाह ताला मेरी पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल नहीं कराएगा। तो रब ताला फरमाता है मा का रसूल फक़ुलूहु, वो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो अब हमें करना क्या है? रब के महबूब ने फरमाया कि सल्लू नमाज पढ़ो, कमा उसल्ली जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। नमाज पढ़ो, ठहर ठहर कर नमाज पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, के साथ पढ़ो। अल्लाह अल्लाह की शान ही निराली है। वक्त आया सहाबा किराम की जो नजरें हुआ करती थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर हुआ करती थी। नमाज पढ़ रहे हैं तो वो हुजूर को देख रहे हैं। मसला तो ये है, आप क्या मसला है कि अगर कोई हमारे इमाम साहब नमाज पढ़े हम उसे देखेंगे तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, मक़बूल पहली नहीं होगी, दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। लेकिन वहाँ मामला क्या है? वहाँ नमाज मुकम्मल हो रही है, हुजूर का दीदार हो रहा, नमाज मुकम्मल हो रही है, मकरूर नहीं हो रही, मुकम्मल हो रही है। वो फरमाते हैं कि मेरा आका अलैहिस्सलाम जब ऐसे तो कायदा किया करते थे, नमाज पढ़ रहे तो हुजूर को देख रहे हैं नमाज की हालत में, जब आप सलाम फेरते थे तो हम आपके करते थे, इधर सलाम फेरते तो आपका ये रुखसार नजर आता था, और इधर सलाम फेरते तो हम आपके रुखसार को देख लिया करते थे। तो नमाज की हालत में हुजूर का दीदार कर रहे हैं तो नमाज मुकम्मल हो रही है। चालू थी इतना लंबा आप सजदा करते थे, ऐसा सजदा करते थे कि कूनियों को आप बुलंद रखते थे, और आपकी जो बदन की वो हम देख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। वो नमाज की हालत पूरी मुकम्मल बता रहे हैं, तो उनका देखने से